Am I audible to all? Yes, sir. Yes, sir. Okay, let's continue. Once again, good morning to all of you. Good morning, sir. Fine, sir. Good morning. So, what was the last topic in Boolean algebra? Anyone, please tell. क्या था last topic? Sir, it was NOR gate and NAND gate. Sir, NAND gate and NOR gate. Yes, NAND gate and NOR gate. What do you mean by NOR gate? The NOR gate is basically a combination of two gates, NOT gate and OR gate. Yes, Sir, very good. plus A plus B. Yes, Rabe, once again repeat. What are you saying? Sir, A plus B bar. A plus B whole bar. And NAND gate में क्या होगा? So it performs The the combination of and logical inverse of an AND gate. So logical inverse AND gate. Yes, yes, very good. Yes, प्रकृति आप कुछ बोल रही थी. sir, I was telling combination of NOT gate and AND gate. Yes, very good. Mixture of combination of set of AND plus NOT gate is called NAND gate. यही था ना? AND को जो आप NOT से पास करा रहे थे, then it will return in the form of NAND gate. Am I right? Yes. Then please wait. I'm sharing a screen. Is this PDF is visual to all? Yes, sir. Have you completed your yesterday homework? Yes, sir. We have completed. Yes, sir. So can you show me this logic gates diagram of this logic gates diagram of this Boolean expression? क्रिएट किया है ना आपने? Yes, sir. Yes, sir. कोई भी एक स्टूडेंट प्रेजेंट कीजिए. A bar then B plus C whole bar plus AB. Any one student. Sir, may I? Yes, and please continue. Is it visual to all? Yes, sir. दिख रहा सभी को मैंने जो भी ड्रॉ किया है Boolean Yes, expression? sir. अब आप लोग डिसाइड कीजिए इज इट राइट और नॉट. Boolean here Boolean expression is A bar then B plus C whole bar then plus AB. This one already it's written here. A bar B plus C whole bar plus AB. मैंने आप एक्सप्लेन कर सकते हैं वट एवर यू ड्रॉन हेयर. Yes, sir. Yes. So, sir, first of all, sir, here by the AND gate, we have put in or we have given two inputs A and B, by which Okay. we get A dot B, and from the A input, I also drawn a NOT gate, by which I get A inverse or A bar, Okay. and by the B gate, B input, I pass it through gate, sorry, on NOR gate, with another input C, and I get B plus C whole.
Okay. and by which and and sir, after that a dot b or b plus c whole bar, both of the inputs are um, let pass through the OR gate, by which I get this expression b plus c whole bar plus a dot AB. b. Yes, And yes. after that I pass a bar and this expression through the AND gate, by which I got x, where x equals to a bar dot third bracket a plus b whole bar b plus c whole bar plus a dot b. Yes, very good. Have you any doubt? Any student? Students, have you any doubt in this Boolean expression? Manik, please mute yourself. No, sir. आप अपने अकॉर्डिंग भी उसको कर सकते हैं। मैनक ने जो किया वो भी सही है, आपका डायग्राम भी थोड़ा सा डिफर हो सकता है, बट ऑर्डरिंग केवल डिफर होगा, लॉजिक सेम रहेगा। देन ड्रॉ द ट्रूथ टेबल। ये वाला दिखाइए कि किसी ने अगर ड्रॉ किया है तो सेकेंड वन प्लीज पेरेंट ए बी बार प्लस सी बार प्लस बी सी बार, truth table of this Boolean expression. Have you created or not? Yes sir. किसने क्रिएट किया? Sir, it's me Maina. नो, मैंने कहा आप रहने दीजिए। एनी अदर स्टूडेंट? माधवी कुमारी हैज लेफ्ट द मीटिंग, वेरी गुड। एनी अदर स्टूडेंट एक्सेप्ट मैनक? किसी ने नहीं बनाया है सर बनाया। तो काइंडली प्रेजेंट कीजिए। सिंपल सा तो लॉजिक है, बस 3 इनपुट्स आपको लेना होगा इन द फॉर्म ऑफ ए बी सी। क्या क्या वैल्यू डालना होगा? टोटल नंबर ऑफ टपल्स कितने होंगे? 0 to 7, एम आई राइट? देन वैल्यू इनपुट कीजिए जैसे मैंने बताया था। देन आपका जो ये एक्सप्रेशन है, पहले क्या निकालेंगे? बी बार सी बार निकालेंगे, इसका कंबाइन कर लेंगे विद द यूज ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर, बी बार प्लस सी बार आ जाएगा। फिर ए से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यही होगा ना? देन बी डॉट सी बार निकाल लेंगे और इन दोनों को कंबाइन करके दिखा देंगे, और कुछ नहीं है। यस, प्रेजेंट कीजिए, अदरवाइज फिर मैंने कोई बोलूंगा। जागृति आपने बनाया है? नहीं बनाया। प्रकीर्ति प्रकाश Yes, sir. आपने क्रिएट किया है ट्रूथ टेबल, इस बुलियन एक्सप्रेशन का ट्रूथ टेबल? हैव यू क्रिएटेड और नॉट? Sir, half हुआ है। एग्जाम में हाफ लिखेंगे तो पार्शियल मार्क्स भी नहीं मिलेगा। एनी अदर स्टूडेंट एक्सेप्ट मैंने घोष? मैं होमवर्क सर में मैंने बनाया है। 3 सर क्वेश्चन मैंने दिया है, सर मैंने भी किया है। तो प्रेजेंट कीजिए। सर अगर ट्राई आपसे करता हूँ सर। असल में सर मैं वेबकैम पे हूँ ना, तो वहां से मतलब प्रेजेंट करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। सर मैं ट्राई करता हूँ। प्लीज आप रहने दीजिए, फिर मैंने कहा आप दिखाइए, क्योंकि मुझे नेक्स्ट टॉपिक नंबर सिस्टम भी स्टार्ट करना है। मैंने प्लीज कंटिन्यू। सर एक सेकंड सर, एक सेकंड, मैं हो चुका सर, एक सेकंड थोड़ा सा। ओके ओके। क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन आएगा, आप जब तक आप खुद से बनाना नहीं सीखेंगे तब तक तो क्लास का कोई मतलब नहीं बनता है। मैंने केवल 4 क्वेश्चन दिया था, दीज 3 क्वेश्चंस एंड सर 1 क्वेश्चन फ्रॉम
लॉजिक गेट दिस वन, वो भी आपसे कंप्लीट नहीं। सर यस मैंने प्लीज present- यस जस्ट मिनट, मैं इसको जूम कर रहा हूँ। इज इट विजुअल टू ऑल? Yes, Yes, sir. sir. यस प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। इट्स कम्प्लीटली विजुअल, आप एक्सप्लेन कीजिए। कम्प्लीटली विजुअल हो रहा है। नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ तो सर मुझे खुद डाउट है कि मैंने ये सही किया या फिर किया है। मैंने वो कहा मैं बताइए। ओके नो प्रॉब्लम, मैंने कहा आप बताइए, देख कर बताइए। एनी अदर स्टूडेंट्स, आप पहले इस ट्रूथ टेबल को कंप्लीट देखिए अकॉर्डिंग टू बुलियन एक्सप्रेशन, देन यू विल डिसाइड वेदर इट इज ट्रू और नॉट। आपने पहले क्या किया, बी बार सी बार यहाँ कैलकुलेट कर लिया, बी बार प्लस सी बार कैलकुलेट किया, वेरी गुड। देन इसको क्या किया, ए बी बार, ए डॉट बी बार प्लस सी बार से कंबाइन किया। देन ए का वैल्यू देखना होगा, फिर ये बैलेंस नहीं हो रहा है। ए का वैल्यू 0 1, ठीक है 0 1। देन आपने फिर राइट साइड में क्या किया, सेकंड लास्ट कॉलम में बी डॉट सी बार कैलकुलेट किया। देन 1 1 1 होता है, ने यहाँ पर क्या किया, 0 सर किया, B 1 बार C बार नहीं है सर, B और बार है, 0 ही होगा। एट वेयर, सेकंड लास्ट वाले में सर, सेकंड सर लास्ट सेकंड जो लास्ट वाले में B और C बार है, B नहीं है। बी डॉट सी बार है दिस वन, बी डॉट सी बार है अकॉर्डिंग टू। तो v की वैल्यू देखिए और सी बार की वैल्यू देखिए। सी बार की वैल्यू की वैल्यू क्या है, थोड़ा डिस्प्ले कराओ। सर 0 है। b की वैल्यू 0 है, आ जाएगा सर 0 ही होना चाहिए। अनिकेत जीरो। ऊपर से पकड़। यस बस इसी पोजीशन पर रहने दीजिए। अब आप निकाल रहे हैं b डॉट सी बार, तो b का वैल्यू 0 है और c की वैल्यू क्या है, सी बार की वैल्यू 1 है। और यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, मीन्स 0 1 क्या हो जाएगा, 0 ही तो होगा, ठीक सर है। 0 ही तो होगा। इसके अकॉर्डिंग बाकी निकाल लेंगे, लॉजिक सही है। लास्ट में इसने लास्ट कॉलम में क्या किया, सर लास्ट में मुझे लग रहा है सही से विजिबल नहीं है सर, एक सेकंड मैं थोड़ा सा कैमरा का एंगल घुमा रहा हूँ। नहीं ठीक है, इट्स विजुअल, थोड़ा तो रहेगा ही, ऑनलाइन में इतना ज़्यादा क्लियर नहीं होगा। ये विजुअल है, यस नाउ इट्स कम्प्लीटली एंड क्लियर विजुअल। एट लास्ट आपने क्या किया, सर a इंटू बी बार प्लस सी बार प्लस बी सी बार। इन लास्ट टू कॉलम्स का कंबाइन किया है, यही यस तो। सर, हाँ सर, हाँ सर। तो आपका उसके अकॉर्डिंग सही तो है, सही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ और ऑपरेशन हो रहा है, मीन्स इफ एनी वन वैल्यू इज ट्रू देन आउटपुट विल बी ट्रू, मीन्स 1। एम आई राइट? यस सर। यस सर। तो एक सही है, वेरी गुड। प्रेजेंटिंग स्टॉप कर लीजिए और हाँ सर, हाँ सर, एक सेकंड। क्लियर है सभी को? यस सर। सर अगर आपने अभी तक भी क्लियर खुद से नहीं ड्रॉ किया है तो काइंडली आप ड्रॉ कीजिए आज। ओके लेट अस कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक। ये वाला पार्ट हो गया था ना, डिराइव द बुलियन एक्सप्रेशन। हाँ सर। हाँ सर। ये नॉर भी हो गया था, नॉर गेट। देन लेट अस कंटिन्यू टू नेक्स्ट फाइल, बुलियन लॉजिक 4। इज दिस pitch completely visual to all? Yes, sir. यस अब सर। देखिए इसमें क्या है, आपका डिमॉर्गन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस यू हैव टू लर्न डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ दो है इसमें। फर्स्ट वन क्या है, x प्लस वाई होल बार इक्वल टू व्हाट, एक्स बार
dot y bar means or operation will be changed into which operation? AND operation. and सिंपल है, operation. इसको यहाँ पर प्लस की जगह क्या हो गया, और चेंज हो गया एंड में. एंड सिमिलरली इन अनदर डिमॉर्गन्स लॉ वेयर x डॉट y बार इक्वल टू क्या होगा, सेम लॉजिक है, x बार और एंड विल बी चेंज इनटू और ऑपरेशन मींस मल्टीप्लिकेशन विल बी चेंज इनटू एडिशन. दैट मींस x बार प्लस y बार. ये आपको बुलियन डिमॉर्गन्स लॉ है. ये दोनों लॉ आप याद रखिएगा, मेमोराइज रखेंगे. देन एग्जाम में आ सकता है विद द यूज ऑफ ट्रूथ टेबल prove that x plus y whole bar equal to x bar dot y bar और ये भी पूछ सकते हैं एनी वन क्वेश्चन. देन ये आपको क्लियर हो रहा होगा. प्रूव करते हैं विद द यूज ऑफ ट्रूथ टेबल. क्या होगा, x प्लस वाई होल बार मीन्स व्हाट, यहाँ 1 आ रहा है. कैसे, क्योंकि सिंपल इसका जीरो क्या है, x प्लस वाई क्या आएगा, जीरो आएगा. इसका जब इन्वर्स करेंगे तो क्या होगा, जीरो विल बी चेंज इनटू 1 मींस वोल्टेज. तो दिस विल बी 1. आफ्टर दैट 0 1 क्या होता है, अकॉर्डिंग टू और ऑपरेशन वे 1 आएगा ना. तो ये किस में हो जाएगा, इनवर्स जब निकालेंगे तो 0 हो जाएगा. एनी डाउट, इस टाइप से सारा वैल्यू निकाल लेंगे. आफ्टर दैट यू हैव टू अगेन कैलकुलेट, यू हैव टू x बार डॉट y बार मीन इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस क्या करेंगे, नो रिस्पॉन्स, एम आई ऑडिएबल? यस सर. Yes, sir. x बार डॉट y बार में यहाँ फर्स्ट वैल्यू 1 आ रहा है. हाउ, कैसे आ रहा है? सर x का कॉम्प्लीमेंट 1 होगा सर, और y का भी कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, और 1 इंटू 1 तो 1 ही होता है सर. यहाँ 0 आ रहा है, ये कैसे आ रहा है? सर x का कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा और y का कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा सर, तो 0 इंटू 1 0 हो जाएगा. यस, और इन दोनों में जो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा. इस लॉजिक पे आप अकॉर्डिंग कर सकते हैं दोनों, बोथ डिमॉर्गन्स लॉ को. हैव यू एनी डाउट? No, sir. देन लेट अस कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्लाइड. अदर लॉजिक गेट, एक और लॉजिक गेट था आपका नॉर और नैंड गेट. इसका थोड़ा सा आप यहाँ पर ट्रूथ टेबल देख लीजिए, और इसका ये एक्सप्रेशन तो मैं गेट्स का ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ. थोड़ा सा यहाँ लॉजिक है. देयर इज 2 और मोर इनपुट सिग्नल एंड 1 आउटपुट सिग्नल इन नॉर गेट. यहाँ तक तो क्लियर होगा. Then if all input signal are 0 means low voltage, then output signal will be 1. That means what? ये आपको और गेट का जस्ट क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा. यही हो रहा था ना. Yes, sir. तो यहाँ 0 0 नॉर्मली यहाँ पर और गेट में क्या आता है, ये वैल्यू आपका 0 होता था ना. देन 0 1 1 में, 0 और 1 में एक वैल्यू हमारा ट्रू है मीन्स ये क्या आता, 1 आता. अकॉर्डिंग टू सिंपल और ऑपरेटर, लॉजिकल और ऑपरेटर और लॉजिकल और गेट, ये 1 0 का वैल्यू क्या आता, 1 आता, और ये 1 1 का वैल्यू 1 आता. बट ये क्या है आपका, नॉर गेट है. डेट मीन्स यहाँ पर आपने क्या किया, और गेट को किससे पास कराया, नॉट से पास कराया. मैंने कल ही बताया था, या तो आप हॉरिजॉन्टल ट्रायंगल में यहाँ पर इस टाइप से सिंबल बना सकते हैं, दिस वन, और ये भी इस टाइप से भी सिंबल बना सकते हैं. और गेट होगा इसके जस्ट राइट साइड में आप सर्किल बनाएंगे, डेट मीन्स इट विल ट्रीटेड एज नॉर गेट. यहाँ 2 वेरिएबल का केस है x एंड y, यहाँ 3 वेरिएबल का केस है x y z. तो यहाँ पर हमने यहाँ नॉर गेट बनाया, डेट मीन्स जो भी मेरा रिजल्टेंट आउटपुट आ रहा था जस्ट उसके अपोजिट होगा. तो 0 क्या होगा, 1 हो गया, देन ये 0 हो गया एंड सो ऑन. एनी डाउट? No, sir. देन इन केस ऑफ 3 इनपुट्स और 3 वेरिएबल x y z, देख सेम लॉजिक ही रहेगा, वेरिएबल के क्वांटिटी से कोई यहाँ पर मतलब नहीं है. इन दैट केस क्या आएगा आपका, केवल जहाँ पे वैल्यू यहाँ 0 0 0 है वो 1 होगा, बाकी क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा नॉर गेट में. देन नैंड इसके
सेम लॉजिक रहेगा, थोड़ा सा केवल क्या चेंज हो रहा है, कंसेप्ट सेम रहेगा, लॉजिक में क्या चेंजिंग है, देयर इज 2 और मोर इनपुट सिग्नल, एटलीस्ट 2 सिग्नल्स या 2 इनपुट्स तो रिक्वायर्ड है, एंड 1 आउटपुट सिग्नल इन NAND गेट इफ ऑल इनपुट सिग्नल आर 1। क्या लिखा है, इफ ऑल इनपुट सिग्नल आर 1 देन आउटपुट सिग्नल विल बी 0, मीन्स एंड का जस्ट अपोजिट हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। इट इज ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल गेट, ये ध्यान रखिएगा। NAND गेट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, यूनिवर्सल गेट के नाम से, बिकॉज फंडामेंटल गेट्स कैन बी रिट्रीव विथ इट्स हेल्प। जो भी आपके फंडामेंटल गेट्स हैं, क्या है फंडामेंटल गेट्स, व्हाट आर द फंडामेंटल गेट्स, और एंड और नॉट, Not. दीज आर कम्स अंडर फंडामेंटल गेट्स। तो NAND गेट क्या है, इस गेट, इसको आप यूनिवर्सल गेट के नाम से भी, बिकॉज इससे आप फंडामेंटल गेट्स को भी रिट्रीव कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। ये डायग्राम क्लियर होगा, लॉजिक गेट्स एंड का ये सिंबल है, इसको आपने पास कराया हॉरिजॉन्टल नॉट गेट से, मींस हॉरिजॉन्टल ट्रायंगल से। तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रीट किस टाइप से करेगा, NAND गेट के टाइप से, या एक अनदर वे में आप सिंपल आपका एंड गेट का जो सिंबल है उसे राइट साइड में आप सर्कल लगा दीजिए, दैट मीन्स इट विल ट्रीटेड एज NAND गेट। ये 2 वेरिएबल का केस है, ये 3rd वेरिएबल के केस में है। इमेज में कोई डाउट है किसी को? नो सर। देन लॉजिक में देखिए क्या हो जाएगा, नॉर्मली ये एंड के केस में ये 1 1 आपका 1 होता, यही होता है ना एंड वाले केस में, बट जैसे ही ये NAND बनेगा तो ये वैल्यू आपका 0 हो जाएगा और बाकी सब 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ रिवर्स हो रहा है, कंप्लीमेंट कर रहे हैं एंड का। सेम केस होगा आपका 3 वेरिएबल के केस में, सेम सिनारियो फॉलो होगा। हैव यू एनी डाउट इन दिस स्लाइड, NAND गेट? नो सर। लेट्स कंटिन्यू टू लास्ट स्लाइड, एक्स और गेट। इसमें क्या होगा, और गेट जो है उसी टाइप से आपका एक एक्सक्लूसिव और गेट है। इसमें क्या हो रहा है देखिए गौर से, एक्स और गेट शायद आपके सिलेबस में है या नहीं भी मैं श्योर नहीं हूँ, ऊपर देखना पड़ेगा, जस्ट मिनट में सिलेबस ओपन कर रहा हूँ। विजुअल यस सर। देखिए आपके सिलेबस में क्या है, अब यहाँ चल रहा है ना दिस वन, हाँ है नॉट एंड और NAND XOR है। नॉर और एक्स और भी है, यही बचा हुआ है ना लास्ट वन। देन ट्रूथ टेबल मैंने बता दिया, डिमॉर्गन्स लॉ दोनों बता दिया है, और लॉजिक सर्किट भी आपको बता दिया, आप कैसे हाउ विल यू क्रिएट ए लॉजिक सर्किट और डिफरेंट बूलियन एक्सप्रेशंस। ये लास्ट वन टॉपिक है आपका एक्स और। प्रेजेंटेशन पे आते हैं, इसको कोई बता सकता है इसमें इंटरनली हो क्या रहा है, थोड़ा सा आप गेस कीजिए एक्स और में क्या होगा हो रहा है, आप नोट्स को रीड करके गेस कीजिए कि इंटरनली हो क्या रहा है। This gate is also comes under universal gate, NAND gate और XOR gate, ये ध्यान रखिएगा, MCQ बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है इससे। $38 students have joined, मतलब 2-3 लेफ्ट आउट हो गया है। समझ में आ रहा है कुछ, नोट्स पढ़कर कुछ भी समझ में आया XOR के केस में? अगर इस थ्योरी से समझ में नहीं आ रहा तो आप प्रैक्टिकली देखिए, आपको प्रैक्टिकली देख क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर लिखा है। नंबर ऑफ वंस जो हाई वोल्टेज है उस पर फोकस कीजिए और उसका कॉम्बिनेशन देखिए, वेदर इट इज इवन कॉम्बिनेशन और ऑड कॉम्बिनेशन।
बहुत बढ़िया है, गाना भी चल रहा है, क्लास भी चल रहा है, गाना भी चल रहा है। बेहतर होगा आप लेफ्ट आउट हो जाइए, गाना ही गाइए, एग्जाम में गाना ही लिखिए। किसी को कुछ समझ में नहीं आया? 38 स्टूडेंट्स को मैंने जो प्रेजेंटेशन दिखाया आपको कुछ भी समझ में नहीं आया? Any students wants to explain this slide? Yes or no बोलिए, देन मैं कंटिन्यू करूंगा। मैंने हिंट्स भी दिया आपको, आप नंबर ऑफ वंस पे देखिए, whether it is even combination or combination. Because final results are based on number of ones. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. भाभी आपको भी समझ में नहीं आ रहा है, मेहनत आपको भी नहीं आया समझ में? एटलीस्ट मैं 3-4 बच्चों से तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आपको समझ में आना चाहिए। जो भी समझ में आया कुछ तो एक्सप्लेन कीजिए। हो सकता है आप पार्शियली राइट हो। सर मैं आई यस प्लीज कंटिन्यू। सर देखिए जितने भी क्लास में आपने डिसाइड कर लिया है कि नहीं केवल सर ही बोलेंगे, सर की ड्यूटी है, सर की प्राइम ड्यूटी है कि सर को बोलना है, हम लोग केवल सुनेंगे, तब तो फिर प्रॉब्लम है, फिर आप नहीं सीख पाएंगे। मैंने इतना क्लियर कट स्लाइड बनाया है, प्रेजेंटेशन बनाया है, जो आप देखकर ही समझ सकते हैं। आई थिंक मुझे एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है। यस यहाँ पर ऑलरेडी मैंने यहाँ नोट्स भी लिखा है, इमेज भी दिया है, यहाँ पर एक डायग्राम से ही प्रूफ कर रहा हूँ, यहाँ इसमें क्या लॉजिक है ये भी मैंने बता दिया क्लियर कट। फिर भी अगर आप नहीं बता पा रहे हैं तो फिर मैं क्लास 4-5 के बच्चों को तो नहीं पढ़ा रहा हूँ ना, सबसे सीनियर क्लास जो है 11-12 में उसको डील कर रहा हूँ, तो एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे। आप डायरेक्ट वे में मत बताइए, लेकिन कम से कम प्रेजेंटेशन देख के तो बता सकते हैं। फिर भी अगर आपने सोच रखा है कि नहीं मुझे कुछ बोलना ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप अपना लॉस कर रहे हैं। ओके प्लीज कंटिन्यू। सर जितने भी इवन कॉम्बिनेशन है उन सबके रिजल्ट 0 आ रहे हैं और जितने कॉम्बिनेशन है उन सबके रिजल्ट 1 है। यस वेरी गुड, यही तो एक सिंपल सा लॉजिक है, एक सिंगल लाइन यस का लॉजिक है और कुछ भी नहीं है। और इसके इमेज में मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं किया, आप लोग इतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ने क्या पूछ लिया है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। क्या लिखा है यहाँ पर, जो आपका और गेट था, ये और गेट सिंबल है ना, और के प्रीफिक्स में मैंने क्या किया, कर्व लाइन दे दिया, एक कर्व दे दिया, यही तो है। एम आई राइट? तो ये क्या बन गया आपका, एक्स और बन गया, कुछ नहीं हुआ है। एम आई राइट और नॉट? यस Yes, sir. देन इसके देखिए नोट्स में क्या लिखा है, एक्स और गेट का लॉजिक क्या है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इट इज रिटन हियर, एक्स और गेट प्रोड्यूस 1 when inputs are not at equal logic level। क्लियर लिखा है, एक्स और गेट प्रोड्यूस कब 1 प्रोड्यूस करेगा, when inputs are not at equal logic level। that means what, इट इज ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल गेट। ये ध्यान रखिएगा, आपका नैंड गेट और एक्स और गेट बोथ आर कम्स अंडर यूनिवर्सल गेट बिकॉज फंडामेंटल गेट्स कैन बी रिट्रीव। अब इसमें देखिए लॉजिक इसका जो लॉजिक सर्किट होगा सिंपल, यू हैव टू क्रिएट और गेट, इमेज ऑफ और गेट, और इसके प्रीफिक्स में एक कर्व लगा देंगे, देन इट विल ट्रीटेड एज एक्स और गेट। यहाँ मैंने 2 वेरिएबल्स को पास कराया, 2 इनपुट्स पास कराया एक्स एंड वाई, एंड इन दैट केस वी हैव पास्ड 3 वेरिएबल्स एक्स वाई जेड, और इसके प्रीफिक्स में यहाँ पर कर्व लगा हुआ। आप देखिए यहाँ 2 वेरिएबल के केस में नंबर ऑफ वंस, यहाँ कॉम्बिनेशन देखिए क्या है आपका, यहाँ ये 0-0 है, यहाँ पर आपका 0-1 मीन्स आपका एवन या ऑड कॉम्बिनेशन है, 1 का ऑड है ना, देन 1-0 में क्या कॉम्बिनेशन है, ऑड है। देन लास्ट में देखिए ये कॉम्बिनेशन क्या आ रहा है, 1 का, ये A1 का आ रहा है, ये भी A1 का, बट सेकेंड और थर्ड प्लेस पे
दिस वन और दिस प्लेस पे जो कॉम्बिनेशन है आपका क्या है, ऑड है, देन आउटपुट क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। इज इट क्लियर? नो रिस्पॉन्स। Yes, फिर मैं sir. क्लास में मैं डिस्कनेक्ट हो जा रहा हूँ, आप लोग नहीं बोलिएगा मैं डिस्कनेक्ट कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर हम लोग हैं। सर एक चीज ये क्लियर नहीं हुआ सर कि वहां पर जो सर बीच के दो लाइन में जो ऑड दिया है सर, सर वहां पर नंबर ऑफ वंस तो इवन है सर, मतलब दो ही तो है सर, तो फिर वो ऑड कैसे हुआ? एट विच प्लेस? सर ये फर्स्ट वाला जो टेबल है सर, उसका जो बीच के जो दो लाइंस है सर, जो ऑड जहाँ पर लिखा है सर। नहीं, आप नंबर 1 0 और 1 है तो ऑड ही हुआ ना, एक ही तो 1 है। यहाँ पर 2 मीन्स इवन हो जा रहा है ना, ये देखिए दिस वन। वो एफ जो है वो उसका आउटपुट है। ये लास्ट वाला तो आपका एफ जो है वो रिजल्टेंट वैल्यू है, दिस वन, इसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आ रहा है। ठीक है क्लियर? सर। क्लियर हुआ आपने? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, अब क्लियर है सर। सर वो मैं जो लास्ट वाला वन को भी मतलब इसी टेबल का पार्ट मान रहा था। according to this image here we have taken only two variables x and y, ये और ये है, सी का वैल्यू है ना 0 0 0 1 1 0 1 1, मतलब ये आपका 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, यही तो है ना डिसमल में। लॉजिक आपका पहले की तरह ही हो रहा है, कोई चेंज नहीं है। अब आप देखिए मैं सही हूँ, यहाँ कॉम्बिनेशन आपका 0 और 1 मीन्स ऑड कॉम्बिनेशन है, अगेन 1 और 0 मीन्स ऑड कॉम्बिनेशन है, यहाँ 1 1 हो गया, डेट मीन्स ये आपका क्या इवन कॉम्बिनेशन हो गया ना। यस सर। सेम लॉजिक यहाँ देखिए 3 वाले नंबर्स 3 इनपुट्स में है, यहाँ देखिए आपका 000 है, ये 1 कॉम्बिनेशन है, ये 0 0 और फिर 1 आ गया, मतलब और ये सर आपका लास्ट वाला सर? ये आपका ऑड हो गया, ये लास्ट वाला 3 हो गया तो यस ऑड हो सर। गया ना, ये ऑड हो गया। यहाँ जैसे ही 2 1 मिल रहा था तो ये 1 नंबर हो गया ना, ओके सर। मतलब एवन हो गया, नंबर नहीं बोलेंगे एवन हो गया, यही लॉजिक तो है। यहाँ देखिए इस प्लेस पे ये ऑड है, बट जैसे ही इस लाइन में आते हैं, इज इट विजुअल जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ? यस सर। यस यस Yes, सर। sir. यहाँ देखिए इस वाले पोजीशन पे ये एवन हो रहा है, क्यों? क्योंकि 2 1 है इसलिए ये एवन हो गया। तो आउटपुट आपका नंबर ऑफ वंस पे डिपेंड कर रहा है, जो इन एनी सर्कमस्टांसेस इट शुड बी ऑड, देन रिजल्टेड विल बी 1। I think now it's clear to all. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो आज के नोट्स में आप ये दोनों स्लाइड लिख लीजिएगा। सॉरी, टोटल नंबर ऑफ स्लाइड आपका 4 है, और BL3 में आपने कहाँ तक लिखा है? पूरा हो गया था क्या? हाँ सर, हो गया था। यस सर हो गया था। तो आज के डेट में आप ये 4 स्लाइड्स कंप्लीट कर लीजिएगा। कल हम लोग नंबर सिस्टम पे नेक्स्ट चैप्टर, दिस वन नंबर सिस्टम, ये वाला है ना नेक्स्ट चैप्टर आपका। उसके बाद इनकोडिंग होगा, देन आपका यूनिट 1 कंप्लीटेड हो जाएगा, देन पाइथन में आएंगे। ओके, सर थैंक यू। प्रैक्टिकल सेकंड टर्म में होगा? नहीं, सेकंड टर्म में कैसे होगा? सेकंड टर्म में आपका सर मतलब तो प्रोग्राम जितना भी होगा? आपका टर्म में तो है ना, यहाँ पर लूपिंग स्टेटमेंट है, सिलेक्शन स्टेटमेंट है, आपका स्ट्रिंग है। प्रोग्रामिंग का जो 2 सेक्शंस है, एक आपका बेसिक सेक्शन आपका टर्म 1 में आ रहा है, और जो थोड़ा सा एडवांस सेक्शन है लिस्ट, टपल और डिक्शनरी, ये आपका टर्म 2 में है। ठीक है सर। तो आपको कुछ सेक्शन जो बेसिक पढ़ना है आपको, ठीक है ना? ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. नोट्स ऑलरेडी अपलोडेड है गूगल क्लासरूम में, DL4।